मॉर्निंग। इन योर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने हार्डली, नो सूनर, एज सून एज, ये तीनों पढ़ लिए थे। अब हम आपका ग्रामर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है यूज ऑफ अनलेस, इफ अनलेस। ओके, नाउ सी, मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, स्टार्ट कर देती हूँ। इफ प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, अनलेस। वहां पे क्या आएगा, अनलेस। ओके, एंड अनलेस रहेगा तब क्या आएगा, दैट आई लेट यू नो। फर्स्ट विल डील विद इफ प्लस नॉट, तो अनलेस है, राइट। सो इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो यू विल फेल। इसको कैसे लिखेंगे हम, अनलेस यूज कहां करेंगे, अनलेस यू स्टडी, अनलेस you study, फिर क्या आएगा, come on, you will fail, right? Understood? Now see, क्या कहा है यहाँ पे, if you don't study you will fail। if है और क्या है, not। यदि don't का यहाँ पे कहा गया, ठीक है, do not is don't, right? So unless you study you will fail। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देती हूँ और अच्छे से समझने के लिए। See, unless he works hard, unless he works hard, he won't succeed। He won't succeed। अब देखो यहाँ unless दिया, तो आप if and not कैसे यूज करेंगे, yes, if he doesn't work hard he won't succeed। if he doesn't works hard he won't succeed। he won't succeed, right? किया। So first one क्या रूल दिया मैंने, if plus not unless, ऐसा दिया है, ठीक है। तो आप किस तरह से यूज करोगे अभी, if and not, ठीक है। यहाँ पे दिस do not, so this don't लिखा है तो क्या होता है, do not ही होता है, right? So if you don't study you will fail। तो इसका कैसे लिखेंगे, unless you study you will fail। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे you will fail। once again I am repeating this, if you don't study you will fail, if you don't study you will fail। इसे कैसे लिखोगे, unless you study you will fail, unless you study you will fail। क्या कहा है यहाँ पे, unless you study you will fail। नेक्स्ट क्या है, unless he works hard he won't succeed। जब तक वो वर्क हार्ड नहीं करे, यहाँ पे क्या यूज किया है, unless। तो if not कैसे यूज करेंगे, if he yes doesn't works hard, if he doesn't works hard he won't succeed, right? Now next, for example, third one now, if you don't study if you don't study you will not succeed। you will not succeed, right? क्या है यहाँ पे, if you don't study you will not succeed। इसको आप कैसे लिखेंगे, yes
बार बार हम नॉट नहीं लिख सकते, राइट? अनलेस यू डोंट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड, नो, अनलेस यू डोंट स्टडी, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट सक्सीड, राइट? अंडरस्टूड? ये था इफ प्लस नॉट इक्वल्स टू अनलेस का, ठीक है? अब नेक्स्ट इसका सेकेंड रूल हम देखेंगे अभी। सेकेंड रूल इज if equals to unless, if equals to unless slash not, unless slash not. इसमें फर्स्ट एग्जांपल, if you like you can go, if you like you can go, इसको कैसे लिखेंगे? कम ऑन, इफ यू लाइक यू कैन गो, तो कैसे लिखेंगे? अनलेस यू लाइक यू कांट गो, राइट? नॉट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कांट गो, तो क्या लिखोगे? अनलेस यू लाइक you can't go. Clear? Once again, if you like you can go. क्या कुछ कहा यहाँ पे? If you like you can go. इसको किस तरह लिखेंगे? Unless you like you can't. See this? Understood? Can't go. Clear? Second example. If you study, you won't fail. If you study, you won't fail. क्या आएगा? Unless you study, you will fail. You will fail. Unless you study, you will fail. Clear? Now see, if you like, you can go. तो इसका क्या है? Unless you like, you can't go. Next क्या है? If you study, you won't fail. तो unless you study, you will fail. Clear? अब इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। Okay. Now wait, I'll give you some examples based on this. Now, first example, unless if का ही, okay? If I do not answer, if I do not answer the door, comma, they will enter anyway. They will enter anyway. Come on, now try. Yes. Unless, yes, unless I answer the door
anyway. Am I right? Now see, if I do not answer the door, इसका एग्जाम्पल ही मैं और दे रही हूँ, दोनों रूल्स जो थे, अब उसके बेस पर आप सॉल्व करके देखो. Can you convert this? If I do not answer the door, they will enter anyway. If I do not answer the door, they will enter anyway. अब इसको क्या लिखेंगे? If के यहाँ पे क्या आ गया? Answer. If I answer the door, they will enter anyway. Am I right? यहाँ पे नॉट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे है. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट, second statement, write down now. If you can cook, if you can cook, then maybe I can feed you. Right? इसको किस तरह लिखेंगे? Try. Unless you cook, then maybe I can't feed you. Right? Maybe अभी काम कैन है, नॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे. I can't feed you. Right? Once again, if you can cook, then maybe I can feed you. क्या कहा है यहाँ पे? अगर तुम कुक कर सकते हो तो हो सकता है I can feed you, वो ऐसा बोल रहा है. ठीक है? So if you can cook, then maybe I can feed you. तो क्या होगा? Unless you cook, then maybe I can't feed you. Okay? Next statement, third one now. Third, if I took the money, I could catch the train to Lucknow, right? Now, इसको किस तरह लिखेंगे? If I took the money, money, I could catch the train to Lucknow. क्या बोल रहे हो? I could catch the train to Lucknow. अभी if है तो सबसे पहले क्या आएगा? Unless, yes, unless I took the money, I couldn't catch, right? Not add होगा. I couldn't catch the train to Lucknow. Clear? Once again now, if I took the money, I could
अनलेस पढ़ लिया। आपका नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक है रिमूव टू यूज टू। टू निकालना है एंड टू यूज करना है, राइट। रिमूव टू यूज टू। नाउ सी 2 प्लस 2 और 4, ठीक है। 2 रहा, टी डबल ओ 2 रहा, प्लस 2 4 रहा, 2 या 4 रहा, तो हम क्या यूज करेंगे, जो 2 निकालेंगे, टी डबल ओ 2 निकालेंगे, ओके, प्लस वहां पे 2 रहेगा या तो 4 रहेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, सो प्लस दैट प्लस नॉट। अंडरस्टूड। जब भी रिमूव टू आया, पहला एकदम बेसिक आपको याद रखना है, सो दैट आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, सो दैट, सो दैट, क्लियर। नाउ I'll give you an example here. Example number 1. She is too fat to climb the tree. The tree. अब बताओ, इसमें हमें 2 रिमूव करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, शी इज सो फैट दैट शी, क्या आएगा, दैट शी कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, राइट। क्या आएगा, शी इज 2 के जगह पे सो फैट, फिर आएगा दैट शी कैन नॉट आ गया यहाँ पे, क्लाइंब द ट्री। अंडरस्टूड। नाउ सी, क्या है यहाँ पे, 2 प्लस 2, टी डबल ओ 2 रहा, प्लस टी ओ रहा, ठीक है। क्या तो 2 के जगह पे यहाँ पे 4 रहेगा, ओके। तो हम क्या यूज करेंगे, सो दैट नॉट, ओके। नॉट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिडंट हो सकता है, डोंट हो सकता है, डू नॉट हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ एनओट ही आना चाहिए। व्हेन यू राइट, जब आप ऐसे लिखते हो तो ये भी शुड नॉट ही होता है, लेकिन हम से प्रोनाउंस करते हैं शुडंट, राइट। अंडरस्टूड। सी, अब इसको हम रिमूव टू, इसमें 2 निकाल रहे हैं, तो किस तरह करेंगे, शी इज so fat that she cannot climb the tree. She is so fat that she cannot climb the tree. Understood? Okay. अब हम देखेंगे use to. अब to कैसे use करना है। इसके बाद इसके बेस पे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। So B, so plus that equals to 2 plus not, 2 plus not plus TO2। क्लियर। इसका एग्जाम्पल देखिए मैं आपको लोगों, he is so clever that he will get the first rank. He will get the first rank. क्या आएगा, he is too clever, क्या आएगा, come on, he is too clever not to get the first rank. He is too clever not to get the first rank, right?
example is, wait, so writing the example here. आपको ये ऐसा भी आ सकता है टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऐसा दे देंगे, ठीक है, ऐसे दे देंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड फिर फर्स्ट आएगा जो स्टेटमेंट है आपका सेंटेंस को आएगा, फिर आएगा यूज टू, या तो आ सकता है रिमूव टू, अंडरस्टूड, ये सारा जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के अंदर ही आता है, बट मैं इंडिविजुअली ये टॉपिक लिख रही हूँ, किया। इसका एक एग्जाम्पल लिखो, he seemed so weak, he seemed so weak that I had to remain. क्या यूज करेंगे यहाँ पे? टू, राइट? सो कैसे लिखेंगे?